Okay. Uh, See, till today we have discussed definitions. We have covered the definitions related to network function. Then we covered the numericals on two-port network, which includes one port also, and then the ladder network. Now the last part which we are going to complete is the necessary conditions and numericals on poles and zeros of network function. This particular question covers, this particular topic covers the complete question number 9 and question number 10, which is generally asked for 13 to 14 marks. It was expected to complete this particular numerical. So have you solved this and found the answer for Z11, Z12? Okay, so all of you got the answer. Can anyone tell me the answer to this question? Sir, for G12 or Z11 or Z12? G12, I think we have cross-checked. I just need Z12, Z11 and Z12. Anyone? Anyone who got the answer for Z11 and Z12? Hello, sir. 5. Yes. Hello, 5. sir. I got for Z11 equals to 5s4. Okay. Hello. Z11 equal to, yes, you can tell me. 5 5s s raised to power 4. 4 plus 5s square plus 1 5s square plus 1 upon uh, 5s to the power 5 5s to the power 5. Okay. plus 3s to the power 4 3s to the power 4 plus 10s to the power 3 plus 3s plus 3s. Okay. Z12. For Z12, s to the power 4 plus 2s square S to the power 4 plus 2s square plus 1 upon 5s to the power 5. Okay, same. Same, yes, 5s sir, to the same. power 5. Other students, kindly check this answer whether it is correct or wrong. Sir, Huh? I also got the The same answer you got? I also got the same answer. Same answer. Fine. So you just, all of you, please note down these two answers, Z11 and Z12. You have to find out if you have not done. Tomorrow I'll be checking your copies as Saturday, conducting two classes so that we can complete this poles and zeros and remaining part of this ladder network. Okay, so all of you just complete this task. It is expected that you people are doing this. Okay, then I have given few formula for the Laplace transform and hence the inverse Laplace transform. Laplace transform of 1 is 1 by s. See, I am giving only the formula which are important for us to get the numericals on pole zeros. So Laplace transform of 1 is 1 by s and inverse Laplace transform of 1 by s is 1. For an example, if inverse Laplace transform of 3 by 2 of s is asked or that we have to find, then inverse Laplace transform of this particular term is 3 by 2. Because you see the inverse Laplace transform of 1 by s is 1, means this numerator. The inverse Laplace transform of 3 by 2 of s is 3 by 2. Okay. Then Laplace transform of e raised to power minus at is 1 upon s plus a. Therefore, inverse Laplace transform of 1 by s plus a is equal to e raised to power minus 8. You can take the example, inverse Laplace transform of 1 upon s plus 2. What is that? E raised to power minus 2t. That is a. In this particular example, a is equal to 2. In this example, a is equal to 2. Okay. So minus sign is same.
only you have to replace this a by 2. If the inverse Laplace transform of 1 upon s plus 1 plus j complex term is asked, that we have to find out, then again a is replaced by 1 plus j. A is replaced by 1 plus j. You can check. A is replaced by 1 plus. If the inverse Laplace transform of 1 minus j is asked, so a is replaced by 1 minus j. So therefore you have this minus 1 minus j into t. Is it clear with this point? The other details are not required for this particular topic, and therefore I am not taking. Otherwise, the complete unit is there, unit number 4, and then you have one more like Laplace transform is there. It is also there in the mathematics. I think Moril ma'am have started with this particular topic. But the formula which I need to understand or to solve the numericals on poles and zeros is this much only. The first formula, Laplace transform of, or rather we need this, inverse Laplace transform of 1 by s is 1. So example which I have taken is inverse Laplace transform of this particular factor or parameter. So therefore 3 by 2. Then inverse Laplace transform of 1 upon s plus a is e raised to power minus at. Now I have replaced this a by 2, therefore it is e raised to power minus 2t. Then I replace a by this 1 plus j, therefore I am getting this. Then a is replaced by 1 minus j, then I am getting this. Okay, so these two formulae are important. That is inverse Laplace transform of the factor parameter. Have you wrote these two formulae in your copies? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. So everyone has copied. Anyone who have not copied this, because these two formulae are important for me to get the numericals done. आप में से कोई ऐसा है जिसने नहीं लिखा है? You see, freely you tell me no, so that I can give you time to write these two formulae. Sir, not written. Okay, please write these two formulae. I need only inverse Laplace transform of these two parameters. Okay. Okay. Now, this particular question, what are the necessary conditions for driving point function and transfer function? This particular question is asked in every examination. You just take winter 19, summer 19, winter 18, summer 18, and so on till winter 30. The weightage to this particular question is 4 to 6 marks. They may ask only the necessary conditions of driving point function, maybe ask the necessary conditions for transfer function, or maybe combined together. These are the necessary conditions of driving point functions. 6 conditions are there that you are supposed to complete this. If not completed, kindly take time and complete it. You have to complete that task today. And this particular conditions not required any discussion. You just have to write down and accordingly have to prepare. And if you find a difficulty into it, we can have a discussion in tomorrow's lecture, as you people have not completed yet. Okay, and I think you are not able to see that complete conditions also, no? In PDF you can see that complete condition. यानी उसमें कोई भी portion आपका कट नहीं रहा है, so you can easily see that. Similar way, the necessary conditions for transfer functions are separately given. Again, 6 conditions are given. Those you have to write down and accordingly you have to prepare. Okay, so now यहाँ पर मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ. ये पर्टिकुलर स्लाइड मैंने शेयर नहीं किया हुआ है. तो ये इंट्रोडक्शन देने के पीछे रीजन ये है कि बिकॉज सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन बाय द टर्म. ओके,
Now poles and zero is our important topic. And then we have to plot that poles and zero. So what is pole and zero? Or what is pole zero plot? So it is a graphical representation. Pole zero plot is a graphical representation of a transfer function. And where it is plotted on S-plane. Now what is S-plane? Like we say XY plane. Similar way, it is referred as S-plane. S-plane, it includes sigma and j omega axis. So sigma is plotted on x-axis, which is referred as sigma axis, and j omega is plotted on y-axis, called as j omega axis. The terms are very simple, don't get confused. The sigma and omega both are representing the frequencies. X-axis represents sigma, hence it represents zeros. J omega represented is on y-axis, it represents poles. These two are nothing but the frequency. S is also referred as frequency. So S-plane basically represents the XY plane. S can be written as sigma plus j omega. जैसे अब तक आप लोगों ने पढ़ा हुआ है Z is equal to x plus iy. Z is equal to x plus iy. या आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा R plus jx. बराबर? So R is representing resistance, X is representing reactance, and Z is representing impedance. So impedance has two parts, real part, imaginary part. Similar way, S, the frequency is having two parts, that is, it is represented in complex part as real part sigma and imaginary part as omega. Sigma is on x-axis, omega is on y-axis. Sigma represents the zeros and omega represents the poles. So pole zero is a plot and is a graphical representation of a transfer function. Now, the definition for zeros of a transfer function are the frequencies, that is the values of S, for which the numerator of a transfer function becomes 0. So these are the values of the numerator of the transfer function becomes 0, which makes that particular transfer function 0. Okay. So let us consider a simple example. If I am getting transfer function, just say Z11 of S is equal to S upon S plus 2. This is my transfer function which I am getting. So this is nothing but the transfer function. That transfer function is say driving point input impedance. उसको आपने नाम दिया ये, right? So transfer function क्या है? It is S upon S plus 2. अब ये जो numerator है, this is numerator. And the other part is denominator. And other part is denominator. Now what is the value of S here? The zeros of a transfer function are the frequencies, that is values of S. So values of S for which the numerator of the transfer function becomes 0. Now here in this case, if I put S equal to 0, अब यहाँ पर अगर मैं S equal to 0 put up कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा? 0 upon S plus 2, that is equal to 0. Now what is transfer function for this particular 0? That transfer function for a 0 is 0. So zeros of a transfer function are the frequencies, that is the values of S. So the value of S is equal to 0 and hence the transfer function is equal to 0.
Okay, let us consider another example. If I do have transfer function is equal to s plus 2, okay, in denominator I do have s plus 3, s plus 4. Now this is again numerator, this is denominator. What is the value of this s which makes that transfer function 0? S is equal to minus 2. So if I put s equal to minus 2 in the numerator, the transfer function becomes equal to 0. That transfer function becomes equal to 0. And hence this particular term, when we have the different values of s which makes that transfer function equal to 0, that term is represented as 0. Now what is pole? What is pole? I think all of you are clear with this term. Any questions? Yes, sir. Okay. थोड़ा छोटा बना देता हूं. Hello, sir. Yes. Sir, can you please repeat the sigma and omega part that you told? Cause I got disconnected for a while. Okay. As you said that he needs the repetition. तो S plane मैंने आपको कहा कि S plane में सीधे सिंपल आपका XY plane है. XY plane में आप जैसे Z को रिप्रेजेंट करते हो, Z इक्वल टू R प्लस J, तो R हो गया आपका X एक्सिस पर, X हो गया आपका Y एक्सिस पर, J X में से X हो गया आपका Y एक्सिस. R रिप्रेजेंट कर रहा है रेजिस्टेंस को और यहाँ पर X रिप्रेजेंट कर रहा है रिएक्टेंस. उसी तरीके से ये हो गया आपका Z प्लेन. उसी तरीके से S प्लेन क्या रहेगा? S प्लेन इज S इक्वल टू सिग्मा प्लस J ओमेगा, जिसमें से सिग्मा हो गया आपका X एक्सिस और J ओमेगा हो गया आपका Y एक्सिस, यानी ओमेगा हो गया आपका Y एक्सिस. तो ओमेगा आप लोग जानते हो इट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी. सिमिलर वे सिग्मा इज आल्सो रिप्रेजेंटिंग द फ्रीक्वेंसी. अब ये फ्रीक्वेंसी किस चीज की रहेगी? तो ये फ्रीक्वेंसी रहेगी आपकी जीरोस, यानी जितने भी यहाँ पर जीरोस है, ऑल दो जीरोस आर रिप्रेजेंटेड ऑन sigma axis and poles are represented on y axis. Okay, so अब यहाँ पर जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया जीरोस को डिफाइन करने के बाद, जीरो डिफाइन कर रहा है कि इट इज अ ट्रांसफर फंक्शन. जीरोस ऑफ अ ट्रांसफर फंक्शन आर द वैल्यूज ऑफ s फॉर विच द न्यूमरेटर ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन बिकम 0, यानी उसका न्यूमरेटर 0 बन रहा है. तो ट्रांसफर फंक्शन अगर मेरे पास है s अपॉन s प्लस 2, तो s का वैल्यू यहाँ पर क्या रहेगा? विच मेक्स दैट ट्रांसफर फंक्शन 0 एज s इक्वल टू 0. यहाँ पर दूसरा एग्जांपल लिया s प्लस 2 अपॉन s प्लस 3 इंटू s प्लस 4. तो s प्लस 2 का यहाँ पर s का वैल्यू क्या रहेगा? s इक्वल टू माइनस 2. दैट मेक्स दैट ट्रांसफर फंक्शन इक्वल टू 0. तो ये हो गया आपका डेफिनेशन फॉर 0. ओके, नाउ द डेफिनेशन ऑफ पोल. पोल क्या क्या डेफिनेशन है? पोल्स ऑफ अ ट्रांसफर फंक्शन, यानी सेम है, सिर्फ 0 को रिप्लेस किया आपने पोल्स ऑफ अ ट्रांसफर फंक्शन आर द फ्रीक्वेंसीज, दैट इज वैल्यूज ऑफ s फॉर विच डिनोमिनेटर. तो यहाँ पर न्यूमरेटर इज रिप्लेस्ड बाय डिनोमिनेटर. तो सिर्फ एक ही वर्ड आपका चेंज हो रहा है, न्यूमरेटर इज रिप्लेस्ड बाय डिनोमिनेटर फॉर द ट्रांसफर फंक्शन बिकम 0. जैसे आपने यहाँ पर न्यूमरेटर में s इक्वल टू माइनस 2 पुटअप किया, ट्रांसफर फंक्शन 0 बन गया. उसी तरीके से s इक्वल टू माइनस 3, s इक्वल टू माइनस 4 अगर यहाँ पर मैं पुटअप करूं तो मुझे क्या मिलेगा? s इक्वल टू माइनस 3 एंड s इक्वल टू माइनस 4 अगर मैं पुटअप करता हूं तो मुझे ट्रांसफर फंक्शन क्या मिलेगा? 0. तो इसका मतलब व्हाट इज s इक्वल टू माइनस 3, s इक्वल टू माइनस 4? व्हाट इज s इक्वल टू माइनस 3, s इक्वल टू माइनस 4? आर द वैल्यूज ऑफ s, आर द फ्रीक्वेंसीज, are the values of s, are the frequencies which makes that transfer function 0, and hence that is equal to, that is represented as pole.
Okay, now when this you have, the transfer function becomes infinity, not zero. Transfer function becomes infinity. So poles of a transfer function are the frequencies, the values of s, for which the denominator of the transfer function becomes zero. यानी डिनोमिनेटर जीरो बन जाएगा, और डिनोमिनेटर अगर जीरो होगा तो ट्रांसफर फंक्शन यहाँ पर क्या रहेगा? इन्फिनिटी. ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा? इन्फिनिटी. ओके, so this is what the definition. चलो उसको और आसान बनाते. Let us take these example. Suppose आपके पास ये है, can all of you see this example? आप लोग ये एग्जाम्पल देख सकते हो ना? Yes. Yes. फिर यहाँ पर मुझे दिक्कत ये आ रही है क्या? Yes, now you can see the complete part. मेरे ख्याल से अभी आप लोग complete part देख पा रहे हो, correct? Yes. Yes, sir. कोई सेक्शन कट नहीं रहा है ना अभी? यस, चलो ठीक है. अच्छा, इस पर्टिकुलर स्लाइड में सिर्फ डेफिनेशंस हैं. वो डेफिनेशंस आप लोगों को कहीं इंपॉर्टेंट नहीं है. नो वन इज गोइंग टू आस्क यू द डेफिनेशन ऑफ जीरो और पोल. आपको जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पर बताया, और मैंने ऑलरेडी वो पीडीएफ स्लाइड का शेयर किया हुआ है, वो आप लोगों को लिखना है आपके पास. ठीक है, ये रिपीटेटिव क्वेश्चन है जो पूछे गए, और उसके बाद वाला न्यूमेरिकल भी है. 2 न्यूमेरिकल्स है, इनफैक्ट 2 या 3 न्यूमेरिकल्स जो बार बार पूछे जाते हैं, और उतना ही अगर आपने पोर्शन कर लिया तो हो गया. यू कैन इजीली गेट 6 to 7 marks या 7 to 8 marks फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक. ओके, जस्ट टेक दिस एग्जांपल. यहाँ पर एग्जांपल में क्या दिया हुआ है? व्हाट इज गिवन? कैन एनीवन टेल मी? एनीवन? Yes, anyone who can tell me what is given? Current transfer function. अच्छा, नहीं ठीक है, चलो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ. यहाँ पर आई ऑफ एस कह सकते हो कि आप ये करंट ट्रांसफर फंक्शन है, बट इट इज जनरली यूज्ड, यानी दिस पर्टिकुलर सिंबल इज जस्ट यूज्ड, है ना? चलो ठीक है, करंट ट्रांसफर फंक्शन कैसे कहते हैं. यहाँ पर भी आपको एक करंट ट्रांसफर फंक्शन दिया है, यहाँ पर आपको एक वोल्टेज ट्रांसफर फंक्शन. ठीक है, तो ये पहला एग्जाम्पल. इस पहले एग्जाम्पल में कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ एस? इट इज जीरो. न्यूमरेटर में जीरो. So what that s equal to 0 is representing? It is representing zeros. It is representing zero. How many zeros are there? Only one. How many zeros are there? Only one. It is represented as z. एक ही है तो इस वजह से z. Otherwise you have a choice z1, z2, z3. Okay. उसके बाद ये हो गया आपका न्यूमरेटर zeros के लिए. Now in denominator में s का वैल्यूज क्या क्या है? s equal to -1, s equal to -4. तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? इट इज रिप्रेजेंटिंग पोल्स. हाउ मेनी नंबर ऑफ पोल्स आर देयर? 2. एंड इट इज इंडिकेटेड एज P1, P2, as there are 2 poles present, therefore P1 and P2. Is it clear with this example? Is it clear with this example? Any doubt? Okay, तो मैंने आपको यहाँ पर पहले स्लाइड में जीरो को डिफाइन किया, पहले वाले स्लाइड में जीरो को डिफाइन किया, और इसके बाद पोल. जीरो क्या होता है? कि जो न्यूमरेटर को जीरो बना दे उसको हम कहते हैं जीरो, और जो पोल यानी डिनोमिनेटर को जीरो बना दे उसको हम कहते हैं पोल. तो जीरो की वजह से ट्रांसफर फंक्शन जीरो होगा, और पोल की वजह से ट्रांसफर फंक्शन इनफाइनाइट होगा. जीरो की वजह से ट्रांसफर फंक्शन जीरो होगा, और पोल की वजह से ट्रांसफर फंक्शन इनफाइनाइट होगा. बस, दैट इज कॉल्ड एज जीरो एंड पोल. ये ध्यान में रखना, नंबर ऑफ पोल्स मस्ट बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ जीरो. द कंडीशन टू दिस इज, आप लोग कंट्रोल सिस्टम में और डिटेल में ये पढ़ोगे. कंट्रोल सिस्टम 1, कंट्रोल सिस्टम 2, और डिटेल में आप लोगों को बताया जाएगा. नंबर ऑफ पोल्स मस्ट बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ जीरो. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. तो ये एग्जांपल मैं ले रहा हूं. इस एग्जांपल में आप लोग देख सकते हैं कि एक है न्यूमरेटर,
और डिनोमिनेटर, कुछ टर्म्स है न्यूमरेटर में, कुछ टर्म्स है डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर में ओनली वन s is present. So when I say s equal to 0, this represents the zeros. That makes that current transfer function 0. How many number of zeros are present? 1. And that can be represented as z. अब ये जब z आप ड्रॉ करोगे उस s प्लेन पर, वो s प्लेन क्या है? इट इज सिग्मा प्लस j ओमेगा. और सिग्मा कौन से एक्सिस पर है? x एक्सिस पर. j ओमेगा कौन से एक्सिस पर है? y एक्सिस पर. तो ये जो आप लोग देख रहे हो, दिस इज योर s प्लेन. दिस इज s प्लेन. अब मुझे इस s प्लेन में जीरो जो है वो रिप्रेजेंट करना है. तो वो जीरो मैं रिप्रेजेंट कैसे करूंगा? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल. यू हैव टू मेक अ सर्कल. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ s हियर? द वैल्यू ऑफ दैट s इज इक्वल टू 0. अब वो जीरो कहां पर है? यहां पर. s प्लेन में जीरो का वैल्यू कहां पर है? यहां पर. बराबर. अब जब आपका s का वैल्यू 0 है तो वो जीरो रिप्रेजेंट कर रहा है. एंड यू हैव टू मेक अ सर्कल दैट रिप्रेजेंट्स z. दैट रिप्रेजेंट्स 0. ये हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन ऑन पोल जीरो प्लॉट ऑफ अ जीरो. अब आपके पास पोल की वैल्यूज क्या है? s इक्वल टू -1, s इक्वल टू -4. ये क्या है? पोल्स है. That those poles makes that current transfer function infinite. How many number of poles are present? 2. It can be represented as P1, P2. यानी P1 equal to -1, P2 equal to -4. जब आप उस S प्लेन पे ड्रॉ करोगे तो आपको उसको रिप्रेजेंट करना है बाय क्रॉस. उसको आपको रिप्रेजेंट करना है बाय क्रॉस. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ S फॉर पोल्स? S इक्वल टू -1. -1 कहां पर है? यहां पर. अब आप क्या करोगे? यहां पर एक सिंपली क्रॉस ड्रॉ करो. दिस इज रिप्रेजेंटिंग P1. S इक्वल टू -4. S इक्वल टू -4 कहां पर है? यहां पर. ये रिप्रेजेंट कर रहा है P2. हो गया. तो अब आपको कहा जाए कि ड्रॉ अ पोल जीरो प्लॉट फॉर दिस पर्टिकुलर गिवन फंक्शन. ड्रॉ अ पोल जीरो प्लॉट फॉर गिवन फंक्शन. तो आपका ये हो गया पोल जीरो प्लॉट. यहां पर आपने z ड्रॉ कर लिया जिसका वैल्यू 0 है. यहां पर आपने P1 और P2 ड्रॉ कर लिया जिसकी वैल्यूज है -1 और -. इज इट क्लियर विद दिस पॉइंट? जीरोस को आप लोग ड्रॉ करते हो सर्कल से, पोल्स को आप लोग ड्रॉ करते हो क्रॉस. सर. हाँ जी बोलिए. सर वो सिग्मा मतलब ये वैल्यू से क्या? -1, 0, 1, 2, -3. हाँ, ये सिग्मा हमने कहा ना, मैंने आपको कहा कि सिग्मा एक्सिस यानी कौन सा? एक्स एक्सिस है. इस एक्स एक्सिस पे मैंने सिर्फ निगेटिव एक्स एक्सिस ड्रॉ किया हुआ है. क्या है? -1, -2, -3, -4, -5. जे ओमेगा एक्सिस पे मैंने ड्रॉ किया हुआ है 1j. बराबर है? 1j. उसके ऊपर क्या होगा? 2j, 3j, 4j एंड सो ऑन. निगेटिव एक्सिस पर क्या आएगा? -1j, -2j, -3j एंड सो. अब इस पहले वाले एग्जांपल में मुझे सारे वैल्यूज जो मिल रहे हैं वो रियल वैल्यूज मिल रहे हैं, लाइक 0, -1, -4. So therefore I am getting only x axis, negative x axis is occupied. So z is 0, बराबर. Then poles are -1 and -4, therefore P1 and P2. So all the values are occupied only on the x axis. That's all with this example. चलो देखते हैं दूसरा एग्जांपल देखते हैं और क्लियर होगा. दूसरे एग्जांपल में ये है न्यूमरेटर, ये है डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर में s का वैल्यू क्या है? 0. कितने जीरोस हैं यहां पर? 1. वो जीरोस आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे? z से. तो s इक्वल टू 0. चलो ये मैं प्लॉट लेता हूं और s का वैल्यू क्या है? 0. तो s इक्वल टू 0. यहां पर आप नाम लिख ले z. अब पोल्स की बात करते हैं. यहां पर s इक्वल टू -2 पहला पोल s इक्वल टू -2 पर है. -2 को आप पोल से ड्रॉ कर लो. तो -2 को सिर्फ आपको क्रॉस से रिप्रेजेंट करना है. s इक्वल टू -2. ये हो गया आपका -2. ओके. तीसरा s² + 2s + 2.
अब ये फैक्टर्स आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आप कैसे निकालते हो? एस स्क्वायर Minus 1 plus I. फैक्टराइजेशन। हाँ, फैक्टराइजेशन कैसे करोगे? माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला सुना हुआ है आप लोगों ने? फॉर्मूला मेथड। बस। Calculator. अब यहाँ पर अच्छा कैलकुलेटर, चलो ठीक है, जो भी है कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर आप लोगों को मालूम है b क्या है? b इज द कांस्टेंट ऑफ दिस टर्म, a इज कांस्टेंट ऑफ दिस टर्म एंड c इज कांस्टेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर टर्म। तो यहाँ पर जब आप पुटअप करोगे तो आपको वैल्यूज क्या मिल रही? आपने कहा, आई थिंक यू सेड Minus 1 plus I. माइनस 1 प्लस आई Minus 1 minus I. माइनस 1 माइनस आई। अब आई की जगह मैं ले रहा हूं जे। तो हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ एस आर देयर? 3। देयर आर 3 वैल्यूज ऑफ एस। एस इक्वल टू माइनस 2, एस इक्वल टू माइनस 1 प्लस जे, एस इक्वल टू माइनस 1 माइनस जे। तो एस इक्वल टू माइनस 2 आपका हो गया पहला पोल, तो जस्ट राइट डाउन देयर P1। अब दूसरा है आपका माइनस 1 प्लस जी। तो प्लस जी यानी कौन सा वैल्यू हो गया? यहां से आप डॉटेड लाइन ड्रॉ करोगे, यहां से डॉटेड लाइन ड्रॉ करोगे, और ये जो पॉइंट रहेगा दैट पॉइंट इज योर सेकेंड पोल P2। तीसरा देखते हैं, एस इक्वल टू माइनस 1 माइनस जे। तो माइनस 1 यहां पर है, माइनस जे कहां पर है? निगेटिव एक्सिस पर। तो यहां से आप फिर से डॉटेड लाइन से ड्रॉ करोगे तो यहां पर मिलेगा आपको थर्ड पोल। उस थर्ड पोल को भी आप क्रॉस से रिप्रेजेंट करोगे। दिस इज हियर द वैल्यू ऑफ थर्ड पोल। व्हाट इज दैट वैल्यू? s इक्वल टू माइनस 1 माइनस। So S1 equal to minus 2, S equal to this. So this is your first pole P1, this is your second pole P2, this is your third pole P3. Is it clear with this point? Sir, Any पर question? hello. हाँ बोलिए ना। जीरोस तो एक ही है ना, जीरोस तो 0 है ना। हाँ तो फिर मतलब हम ऐसे निकाल लेंगे तो फिर जीरो तो 1 और -1 आ जाते हैं हाँ, जीरोस। जीरो तो यहाँ पर बेटा एक ही है ना। जीरोज आपको मिलेंगे हाँ, न्यूमरेटर से और पोल्स आपको मिलेंगे डिनोमिनेटर से। जीरो की वैल्यू 0 है ना। एस की वैल्यू 0 है। हाँ, एस की वैल्यू तो यहाँ पे वाई एक्सिस में तो यहाँ पे S 1 और प्रेजेंट है ना? -1 आ गए। नहीं, यहाँ पर S प्रेजेंट है ना। S यहाँ पर प्रेजेंट है, तो S अगर प्रेजेंट है तो इसका मतलब यहाँ पर जीरोस कितने हैं? 1। अच्छा, चलो और एक एग्जांपल मैं जस्ट बता देता हूँ। अच्छा, सपोज ओके। आपके पास है s इंटू एस प्लस 2 न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में आपको दिया हुआ है s प्लस 3 s प्लस 4 इंटू एस प्लस 5। मैंने आपको ऑलरेडी कहा है कि नंबर ऑफ पोल्स मस्ट बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ जीरो। नंबर ऑफ पोल्स मस्ट बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ जीरो। ठीक है, तो आपके पास ये एक एग्जांपल देके रखा है, s इंटू एस प्लस 2 अपॉन एस प्लस 3 एस प्लस 4 एस प्लस 5। अब जीरोज आपको कहां से मिलेंगे? न्यूमरेटर से, और पोल्स डिनोमिनेटर से। अब यहां पर जीरोस कितने हैं, या व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ जीरोस? अब वो वैल्यूज ऑफ जीरोस कहां से निकालोगे? न्यूमरेटर से। s इक्वल टू 0, s इक्वल टू -2। हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोस आर प्रेजेंट? 2। दीज 2 आर जीरोस। अब आप जीरोस को रिप्रेजेंट कैसे करोगे? z1 z2। हाउ मेनी नंबर ऑफ पोल्स आर प्रेजेंट? 3। व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ पोल्स? s इक्वल टू -3, -4, -5। How many number of poles are present? 3. How will you represent it? P1, P2, P3. Is it clear with this point, this example? This is your say third example. The only thing is the power, that is degree, of denominator must be greater than the power of numerator. Second, the number of poles of denominator, that is the number of poles, must be greater than the number of zeros. Then we say the system is stable. अब वो बाकी आप कंट्रोल सिस्टम में पढ़ोगे, अभी मैं आप लोगों को नहीं बताता उसके बारे में। So right now you just take this. अब इसका मतलब s इक्वल टू 0, s इक्वल टू -2, that can give me a 0.
If numerator is 0, the transfer function is 0. Then s equal to -3, -4, -5. That makes that denominator 0, which makes that transfer function infinite. लक्षात देता है? सभी लोगों को ध्यान में आ रहा है? अगर यहाँ पर मैं s equal to -3 पुटअप कर दूं, s equal to -3, तो -3 + 3 क्या होगा? -3 + 3 क्या होगा? बोलो जल्दी। -3 + 3 क्या होगा? Zero. 0। इसका मतलब डिनोमिनेटर क्या हो गया आपका? 0। डिनोमिनेटर 0 हुआ, लेकिन ट्रांसफर फंक्शन क्या हुआ आपका? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। तो ट्रांसफर फंक्शन इनफाइनाइट हो रहा है, इसका मतलब वो जो वैल्यूज है, दोज वैल्यूज आर कॉल्ड एज पोल। अब यहां पर मैं s इक्वल टू 0 अगर पुटअप कर दूं, तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? 0। ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा? 0। इज इट क्लियर विद दिस पॉइंट? ओके, अब आपको क्या करना है? यू हैव टू प्लॉट अ पोल 0 फॉर दीज वैल्यूज। अब पोल 0 के लिए आप लोग क्या करोगे? आपको तो ये तो पता चल गया भैया ये 0 है और बाकी सभी वैल्यूज माइनस में है, तो आप क्या करोगे? y एक्सिस ड्रॉ करोगे, एक छोटी लाइन, उसके बीच में आप x एक्सिस ड्रॉ करोगे और उस x एक्सिस पर इक्वल डिस्टेंस पर, अब आप यहां पर ले सकते हो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 या 1 सेंटीमीटर इक्वल टू से 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1, यानी आपका यूनिट सिलेक्शन आप पे डिपेंड रहेगा। मेरे ख्याल से ग्राफ पेपर आप लोग जानते हो ना, फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने प्रैक्टिकल किए हैं, तो आप लोग ग्राफ पेपर क्या होता है ये जानते हो। ग्राफ पेपर क्या होता है ये आप लोग जानते हो, है ना? तो एक तो आप ले सकते हो 1 यूनिट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर या फिर 1 यूनिट इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स में ये जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ पर मैंने 1 यूनिट इक्वल टू 2 सेंटीमीटर लिया हुआ है। ओके, चलो यहाँ पर मैंने सपोज दिया, यहाँ पर है मेरा -1, ये है -2, यहाँ पर है -3, यहाँ पर है -4, यहाँ पर है -5। अब आपको पोल 0 ड्रॉ करना है इस पर्टिकुलर गिवन फंक्शन के लिए। अब s इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू -2, ये दोनों क्या है? जीरोज है, तो आप उसको ड्रॉ कैसे करोगे? सर्कल से। यहाँ पर आपने ड्रॉ कर लिया सर्कल, 0 हो गया और दूसरा है -2। इनको आपको नाम देना होगा, लेट अस से दिस इज Z1, दिस इज Z। और पोल्स आप कैसे ड्रॉ करोगे? जो वैल्यू मिल रही है आपको -3, तो क्रॉस -4 क्रॉस -5, उनको आप नाम दे दीजिए P1 P2 P3। खत्म हो गया। So this is your third example. I think hopefully you people are clear with this example. ये जो है एग्जाम्पल, दिस इज सेम एज दिस वन। यहाँ पर सिर्फ ये आपका h जो है कांस्टेंट वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है, अदरवाइज द zeros are s equal to 0, the poles are s equal to -2, then s equal to -1 plus j, -1 minus. That's all. So I think this example is same. Okay. Now, any question? Okay. Now I suggest you to write down this. सर इसके पहले की थ्योरी वो तो आप लोगों को स्लाइड शेयर किया हुआ है मैंने। ये बोल रहे हो क्या? हाँ हाँ हाँ, ये कोई लिखने की जरूरत नहीं, ये कोई लिखने की जरूरत नहीं है, ये आप लोगों को ऑलरेडी कंट्रोल सिस्टम में पढ़ाया जाएगा। और तब तक ये नेटवर्क का कॉपी तो आप कहीं रख दोगे ऊपर, है ना? तो कोई लिखने की जरूरत नहीं है, ये डेफिनेशन कोई नहीं पूछता। सर मतलब कुछ भी नहीं लिखना है सामने की नहीं, स्लाइड? इस पर्टिकुलर स्लाइड से कुछ भी नहीं लिखना है आपको। ओके। हाँ, और ये तो इंट्रोडक्शन है ना, s इक्वल टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा, ये तो आप लोग अब आप पता चल गया आपको, अब आपको बार बार इसको ध्यान में रखने की जरूरत है। ठीक है, तो s इक्वल टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा, सिग्मा एक्सिस यानी x एक्सिस, जे ओमेगा एक्सिस यानी y एक्सिस। सिग्मा एक्सिस रिप्रेजेंट करता है जीरोस को और y एक्सिस रिप्रेजेंट करता है पोल्स को, या फिर आप कह सकते हो कि सिग्मा एक्सिस आल्सो रिप्रेजेंट्स पोल्स, y एक्सिस आल्सो रिप्रेजेंट्स जीरो। ओके, चलो ठीक है, दिस ओनली यू नीड। सर टास्क कौन सा है? क्या बोले? सर आपने कहा था ये टास्क कंप्लीट करना है, कौन सा? तो टास्क यानी वो जो मैंने पीडीएफ शेयर किया हुआ है ना, वो राइटिंग वाला पार्ट कंप्लीट करना है उसमें से, यानी ओके टास्क यानी ये वाले।
ये नेसेसरी कंडीशंस आपके पास लिखनी है ट्रांसफर फंक्शन की और ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन। ये क्वेश्चन आपका हर बार पूछा गया है 4 से या 6 मार्क्स से, तो ये आप आपके पास लिख के रखें। सर आपने क्लासरूम पे भेजा है? हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजा हुआ है, कल रात को भेजा था। ओके, ये आप लोगों ने लिख लिया फिर आपके पास एग्जाम्पल, आपको पता चल गया कैसे करना है, आगे बढ़ सकते हैं। सर वेट फॉर 2 minutes. फाइन फाइन, नो इशू।